હે ગાઈઝ હેલો ગુડ મોર્નિંગ નમસ્કાર વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ. તો આજના વ્લોગની શરૂઆત કરીએ. 6 વાગવા આવ્યા. હું જઉં સ્કૂલમાંથી પ્રવાસ. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. પપ્પા વન મૂકવા આવો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચલો તાણ હવે મૂકવા જઈએ. કેટલા વાગે જવાનું? માર તઈ થઈ ગયો ટાઈમ હેડો કેટલા વાગે ફટાફટ જવા પણ કેટલા સુધી જવાનું? સ્કૂલમાં સ્કૂલમાં તો બરાબર પણ તો જવાનું હોય. હિંમતનગર બાજુ શામળાજીની બાજુ. શામળાજી નહીં કરવાનું. તો ચલો હું જાઉં. હું હવે મળી કનાય વળું. કેમ ના મળો? હું તો મોડા આવવાની હું મોડા એટલે રાતે? રાતે. હા તો બ્લોગમાં લખું આજે હવે સવારથી લઈ અને સાંજ સુધી બ્લોગ આપણે કરીશું. હાલ બ્લોગની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બ્લોગમાં સમય મળીશું. ચલો આપણે મૂકી નાખીએ. 9:48 થઈ. આપણે નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ ગયા છીએ અને આજે પણ ખાસું મોડું થઈ ગયું. 9:45 થઈ ગયા છે. એકચ્યુઅલી હવે કલાક 2 કલાક પછી જમવાનો ટાઈમ થાય પણ આપણે ચા નાસ્તો કરીએ કારણ કે રાત્રે ગયા હતા બહાર એટલે આવ્યા મોડા. પછી પાછા સવારે વહેલા ઉઠી અને બેનને જવાનું તો સ્કૂલની ટૂર હતી એમાં એક દિવસની. તેમને સવારે વહેલા મૂકવા ગયા હતા એટલે પાછા આવીને પાછા આપણે હોઈ ગયા હતા. બરાબર છે. એટલે બેન ગયા છે આજે આખો દિવસ બેન વ્લોગમાં આવશે નહીં કારણ કે એ ગયા છે ટૂરમાં. એક દિવસની સ્કૂલ ટૂર છે. તો આપણે જેટલું પણ બને એટલું આજની એક્ટિવિટી વ્લોગ દ્વારા આપણે બતાવીશું. તો વ્લોગમાં બને રહેજો. અમારા વ્લોગ વિડીયોને તમે વધુમાં વધુ જુઓ. છેક સુધી પૂરેપૂરા વ્લોગ જુઓ અમારા અને લાઈક કરો, શેર કરો અને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરો. ચલો તો રસોડામાં જઈએ. આપણે રસોડામાં આવી ગયા છીએ. જો અહીંયા આપણા માટે રોટલી બની ગઈ છે. અહીંયા ચા પણ બની ગઈ છે. અહીંયા બીજી એક રોટલી છે ને રોટલીમાં ઘી બી લગાવીને મૂકી દીધું છે. તો ચલો આપણે. તમારે ચા નાસ્તો કર્યો? તે સવારે બૂંદ ખાઈ લીધું એમ ને? તો ચલો ભાઈ, એમને ચા પીવી હોય તો થોડી પીશે, ટેસ્ટ કરશે કારણ કે શિયાળો છે એટલે ચાલે પીવાય. આમ ના પીતા બરાબર. શિયાળામાં થોડી ચા બા પીવો તો ચાલે. તો ચલો આપણે ચા નાસ્તો કરી લઈએ પછી મળીએ. ત્યાં સુધી વ્લોગમાં કન્ટિન્યુ રહેજો. તો 1:19 થઈ ને આપણે અહીંયા જમવા બેસી ગયા. જો દાળ છે ને રોટલા છે. અહીંયા ચિંટુ મહારાજ. ભાઈ કેવું રહ્યું? દાળ રોટલા મજા આવી ને? રુદ્ર મજા આવી ગઈ? તો થોડુંક લેટ બન્યો. આપણે દાળ ને રોટલા મોહળી અને ખાધા છે. ખાવાની મજા આવી ગઈ. બાજુમાં છાશ અને ડુંગળી છે. તો લોગમાં મળાઈ રહેજો. મળીએ જમ્યા પછી. ચલો તો 8 વાગી ગયા. આપણે અહીંયા જમવા બેસી ગયા છે. રોટલી મરચાં હળદર તો મસ્ત રાતની હતી. એ ભરેલા રીંગણા. આ બાજુ સૃષ્ટિ છે, આ બાજુ રુદ્ર. તો આપણે હવે જમી લઈએ. જમીન પછી મળીશું. ત્યાં સુધી વ્લોગમાં બનાવી રહેજો. હજુ વ્લોગનો એન્ડ કર્યો નહીં. વ્લોગનો એન્ડ છે એ કૃપા દીદી આવે એટલે વ્લોગનો એન્ડ કરશે. આપણે વ્લોગનો એન્ડ કરીશું નહીં કારણ કે કૃપાબેનને લઈ આવીશું. એ જ્યાં છે સ્કૂલમાંથી પ્રવાસ એટલે આવશે એ વ્લોગનો એન્ડ કરીશું. ત્યાં સુધી આપણે બધા જમી લઈએ તાણા. બરાબર ને? ચલો તાર મળીએ પછી.
जो काले मेघ की तरह सुंदर है, जिन्होंने रेशम के पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके शरीर पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है और जो स्वयं कौस्तुभ मणि से सुशोभित है, ऐसे पावन कमल नयन एवं तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण को हम सादर नमन करते हैं। आस्था, दिव्यता, इतिहास एवं वास्तुकला का समन्वय हूँ मैं। भगवान श्यामला जी को समर्पित पवित्र मंदिर हूँ मैं। प्राचीन धर्म और अटूट भक्ति की कहानियां सुनाने मैं आज भी विद्यमान हूँ। गुजरात के अरवल्ली जिले में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मेश्वा नदी के तट पर स्थित है मेरा ये विशाल प्रांगण, जिसके हृदय में वास करते हैं परब्रह्म भगवान विष्णु। इस पवित्र मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पूजे जाने वाले साक्षी गोपाल या देव गदाधर विष्णु भगवान का एक शांत स्वरूप है, जिनका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। श्याम रंग भगवान की दिव्य प्रकृति, उत्कृष्टता एवं संसार की नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं में समाने की क्षमता को दर्शाता है। ये त्रिलोकपति भगवान विष्णु के दुर्लभ मंदिरों में से एक है, जिसमें उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप को पूजा जाता है। इस मंदिर में भगवान श्यामला जी या कहें श्री कृष्ण चरवाहे के रूप में दर्शाए गए हैं, जहां उनके साथ गौ माता की भी पूजा की जाती है। वैष्णवों के लिए श्यामला जी मंदिर पूरे भारत के 154 प्रमुख तीर्थों में से एक तो है ही। इसके अलावा गुजरात के 3 सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में द्वारका और डाकोर के साथ श्यामला जी मंदिर का नाम भी लिया जाता है।
भक्तिभाव से पूर्ण इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी अनेक किंवदंतियां एवं पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी जनमानस में सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा पर ध्यान दें तो इस करमपूज तीर्थ क्षेत्र को श्यामला जी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पश्चाताप करने हेतु ब्रह्मा जी गुजरात में त्रिशूल पर्वत के निकट पहुंचे और उन्हें ये स्थान पवित्र लगा। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान कर लगभग 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे एक महायज्ञ करने का आग्रह किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आदित्य प्रवर महायज्ञ करने का निर्णय लिया। महायज्ञ में विद्वान पंडितों आदि को आमंत्रित किया गया, जिन सबके हाथ धोते समय झील पानी से भर गई थी, जिसका पवित्र जल मनुष्य के पापों को नष्ट करने में सक्षम था। इसलिए देवताओं ने इस स्थान का नाम करमपूज तीर्थ क्षेत्र रखा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। मुझे बताएं कि आपको क्या वरदान चाहिए। हे स्वामी, हे सृष्टि के पालनहार, आप मुझे वरदान दें कि जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्ण आपकी पूजा अर्चना करेगा उसका कोई अहित न होगा, एवं मोक्ष पाने हेतु जो कोई भी करमपूज तीर्थ की यात्रा करेगा आप उन्हें अपने श्याम रूप के दर्शन देकर उनका उद्धार करेंगे। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, मैं सदैव के लिए करमपूज तीर्थ में निवास करूंगा और जो कोई मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करेगा मेरा आशीर्वाद उस पर सदैव ही रहेगा। मान्यता है कि तब से भगवान विष्णु अपनी लंबी गदा धारण किए हुए अपने श्याम रूप में इस तीर्थ में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें गदाधर के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी ही एक और किंवदंती है जो इस मंदिर के निर्माण का ताना बाना बुनती है। माना जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया, परंतु प्रातः होते ही वो इस मंदिर को अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने इस मंदिर को यहीं छोड़कर जाने का निर्णय लिया। किंवदंतियों से अगर प्रामाणिक इतिहास की ओर चले तो इस कहानी के पन्नों की शुरुआत मौर्य राजवंश से होती है। इसके आगे चलें तो देवनी मोरी के पास पाए गए लेखों में कहा गया है
कि ये क्षेत्र 4वीं शताब्दी के दौरान कथिक वंश के शासन के अधीन भी हो सकता है। देवनी मोरी के पास खुदाई के दौरान पाए गए प्रमाण इस ओर भी संकेत करते हैं कि यहाँ भगवान शिव की आराधना के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी वास था। लगभग 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में गुप्त काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये वही समय था जब भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की शुरुआत हुई। 800 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं निम्बकाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने वैष्णव अनुयायियों को बढ़ावा दिया। उसी के परिणाम स्वरूप तीर्थ स्थानों का नवीनीकरण हुआ, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया, यज्ञ किए गए एवं श्यामला जी भी समृद्ध हुआ। उन्हीं मंदिरों के निर्माण में मेश्वो नदी के तट पर हरिश्चंद्रनी चौरी मंदिर का विवरण भी मिलता है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बने इस मंदिर की झलकियां आज भी देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह के सामने एक बड़ा मंडप स्थापित है, जिसमें 2 समीपवर्ती दीर्घाएं हैं जो सभाओं या अनुष्ठानों के लिए स्थान सुझाती हैं। गर्भगृह की दीवारों पर कोई मूर्ति या नक्काशी अब नजर तो नहीं आती, लेकिन किंवदंतियों को माने तो यहाँ देवी मंगला की मूर्ति स्थापित हुआ करती थी। मंदिर का शिखर नागर शैली में निर्मित है। वर्तमान में मंदिर परिसर की दीवारें तो गिर चुकी हैं, लेकिन सजावटी प्रवेश द्वार यानी तोरण अब भी खड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे गुजरात का सबसे पुराना तोरण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के विवाह स्थल के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। हरिश्चंद्रनी चौरी नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला के प्रमाण के रूप में सदियों से आज भी खड़ा है। समय बदला, दौर बदला, गुजरात में सोलंकी वंश દોઢ વાગી ગયો અને સ્કૂલથી આવી ગયા પિકનિકમાંથી ઘરે. તો કપડાં બપડા બદલીશું અને ફ્રેશ થઈને ઊંઘી જઈશું. તો આજના વ્લોગને અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. મળીએ આવતીકાલે એક નવા વ્લોગ સાથે. ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી, બાય બાય.